अल्लाह बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम सर। जी, तो उम्मीद है कि जो है ना this short experience give us a very good start about why should we be moving to a educational platform than a non-educational platform. Inshallah, I will be discussing rest of my available time. We will discuss about the software features and what it takes for us to do a successful run a successful educational platform. So before I start, जो भी अभी म्यूट पर नहीं है, kindly please check your mics and put them on mute so that we have a smooth session. Otherwise, there will be disturbances. So please check अब्दुल रहमान your. सर स्मॉल रिक्वेस्ट, अब्दुल रहमान सर स्मॉल जी रिक्वेस्ट, सर, आप जी अपने सर। शेयरिंग परमिशन ले लेकर मुझे फिर दोबारा होस्ट बना दीजिए ताकि मैं उन लोगों को म्यूट करता रहूं। मैं शेयरिंग आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना तो एडवांस करें। इफ यू गो इन द सेटिंग्स देयर, हाँ आई थिंक आई हैव टू गिव यू परमिशन। यस, आप मुझे दोबारा होस्ट बना दीजिए, आई विल गिव यू परमिशन। राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। या mute, okay, make host, done. Okay sir. Sir, I gave the permission to you. Thank you very much, sir. I hope everybody can see my screen. Yes sir, we can. Yeah, excellent. So without wasting further time, inshallah we will take forward the program. I hope that I will get 10 minutes extra, the time we lost. Arif sir. Sure sir, inshallah, sure. Sir, please unmute yourself. Abdul Rahman sir, please unmute yourself. Yes. इस बीच में दूसरों से गुजारिश, आई एम रियली सॉरी फॉर द ट्रबल विच हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर हैपेंड समवेयर। इंशाल्लाह यहाँ से सेशन स्मूथ चलेगा। किसी वजह से अगर टाइम आउट हो जाता है, सेशन खत्म हो जाता है इस बीच में, तो आप सबसे गुजारिश है कि दोबारा लॉग इन हो जाएं। थैंक्स, यू ऑल विल कोऑपरेट। और अब्दुल रहमान सर, ज़्यादातर यहाँ पर जो ऑडियंस है वो उर्दू से वाकिफ हैं, तो आप थोड़ा इंग्लिश मिक्स करते हैं बोले तो मेहरबानी बस। इंशाल्लाह। सो शुक्रिया बहुत बहुत जनाब स्टेट सेक्रेटरी साहब, आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हमको इनवाइट करने का। एंड मैं इंशाल्लाह जो है ना, आई ट्राई टू कीप अप द टाइम। कोशिश यही होगी कि जो टाइम अलॉटेड है उसी टाइम में मैं अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाऊँ। इफ़ आई एम स्पीड, प्लीज़ पिंग मी डाउन थ्रू द मैसेज सो दैट आई विल स्लो डाउन, बिकॉज स्लाइड्स थोड़े से ज़्यादा है एंड आई हैव टू कवर दोस इंशाल्लाह बिफोर वी कंप्लीट द सेशन टुडे। गया है हमारा voice not coming. Yes sir, we are waiting for sir to join us. Better we use another app because Google Meet is very good compared to yes, sir. Zoom. I do agree with you, but another issue is Zoom पर सारे लोग ट्रेन हो चुके हैं, so therefore we don't want to switch it right now, but we will definitely go ahead in future meetings. Yes, thank you so much. We are just waiting. Abdul Rahman sir, are you there?
Hello. Yes, sir. We are here, sir. Okay. Sorry, there was disconnect. Yes, sir. Sorry from our side. I don't know what's happening today. It didn't happen like this before. No, I think it is better idea that next time we can use Google Meet. Inshallah, we'll discuss that Google today. Meet, yes. What are the Google Meet features and how we can effectively utilize it. Inshallah. इंशाल्लाह So, तमाम पार्टिसिपेंट्स को गूगल मीटिंग की भी एक छोटी सी ट्रेनिंग दे दी जाएगी ताकि आगे जो मीटिंग्स है वो गूगल मीट पर हो जाएं, बेहतर रहे. Inshallah. Sir, We'll not over have to this you, kind sir. of problem. Sure, sir. Thank you very Yeah. much. Sir, this is the quick agenda. I'll be having a very short induction slide. We'll be discussing about two platforms. What is learning management system and what is SMS, school management system. Very quickly, because this will set the foundation कि हम किस subject पे आगे बात करने वाले हैं. Then I will be very briefly talking about future of online education. Yani, what is the future? How, what the industry will look like in next down the line 5 years to 10 years. So that would be the So please unmute yourself. so why I'm getting mute every time. Yeah. Okay. So I think my slides are still visible, right? Yes, sir. They are quite clear. Okay. So this was the agenda I was actually talking about. So we'll be discussing about future of online education, then what are the government regulations, then we'll discuss about what are the educational softwares available to be used by schools or colleges or universities. Then if time permits, I will go for additional tools. Otherwise, I will try to catch up with the G Suite demo. So that will basically at least give a fairly good idea about what I'm talking today. I think this slide already repeated 2 times. Let me quickly go over. I don't know because there was a lot of disconnect. I don't know whether people have seen. So I'm currently heading TWG International in the capacity of CEO, having 22 plus years of work experience into multinational companies, both in India, Germany, as well as in Finland. I was working for Siemens, Nokia, and Microsoft. Worked across multiple regions and multiple countries. Alhamdulillah, got an opportunity to meet a lot of industries. Coming back from telecommunication, IT, and education industry. That is my very quick background. And let me move on. So this is the platform which is generally people get confused. I have been meeting for last 1 week a lot of schools and colleges. Log generally chunke the educationalists, they are actually coming from the educational background and mashallah they are doing very good. Education में they are doing wonders. But चूंकि IT का जो connect है because of the new updates which are happening every day, IT में बहुत सारी changes होती रहती है on a daily basis, on a weekly basis, on a monthly basis. So यहाँ पर there are two platforms where people generally get confused. The first platform is called LMS, that is Learning Management System, and the second platform is School Management System. These are the two platforms and two distinguished platforms altogether. The School Management System talks about, I'm pretty sure most of you probably using either of the platforms or one of the platform. So this is for those who don't have a really good idea about this platform. So SMS is pretty much about the school management itself. How do you manage the school? How do you manage the fee structure? How do you manage the staff? How do you manage the inventory? All that stuff. That all comes under SMS. On your right side, you see SMS platform. On the left side of your screen, you will see Learning Management System. This is the system. Actually, we'll be spending some time today about discussing about this system. What is Learning Management System? What are the features available in Learning Management System, and how this system is different from the other webinars kind of platforms, conferencing kind of platforms. Okay, so I'll be spending little time on explaining LMS, and then I'll be jumping on to the demo, inshallah. Most probably, Arif sir, we will be having the question answer session at the end, right? Yes, sir. We do have that session slot for it. All right. So let me move on. So this is a very interesting slide. If we understand this slide, inshallah, we will be understanding the rest of the session. So this slide talks about the two areas. So LMS, the previous slide we saw LMS and SMS. Now you see this is a split of LMS. LMS has basically, Learning Management System has
two areas. One is called educational side, another one is called non-educational platform. So most of the time when I'm approaching very big colleges in the city, very big names and schools in the city, when I go and generally ask them, sir, are you delivering online classes? They say yes, हाँ हम online classes ले रहे हैं. When I ask the second question immediately कि आप online classes कैसे ले रहे हैं? So they say that we are using Zoom, or they say that we are using WebEx. So if we look at the platforms which are shown on the top, Zoom, WhatsApp, Skype, WebEx, these are the non-educational platforms. Means like we are using this conference. Like in the beginning itself, we had a lot of challenges to get into this conference, right? So this is basically a conferencing platform जहाँ पे लोग जमा हो सकते हैं. जैसे देखिए सेमिनार होता था, सेमिनार की जगह अभी वेबिनार हो रहा है. This is a webinar, right? You all are connected on the web. तो इस प्लेटफॉर्म में it is basically people can communicate with each other, they can see each other, most probably they can able to talk to each other, and they can share some things like the screen how I'm sharing currently. But remember that these platforms, none of these platforms are the educational platforms. None of the platforms are the educational platform which are mentioned on the top. And if you look at the down, we will see that there is a Google Classroom, there is Microsoft Teams for education, there is Edmodo, there is Moodle. So these are the educational platforms. So the fundamental difference, I will come to the next slide very quickly. I'll just shed some light on what is the fundamental difference. But remember one very important point, that when a student log in using Zoom or Skype, WebEx or whatever platform you name it, when a student log in, जब student log in करता है कोई भी platform पे, जैसे अभी हम log in कर रहे हैं इसी conference में, so we got a link, we click on the link and we logged in to the platform. So same way, when a student log in, actually he is not logging into a classroom, he is logging on to a general conference. So that means when a student come to school, he actually go and attend the class, right? So student जब स्कूल को आते हैं तो वो लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आने के बाद they go and enter into their class. Similarly, the above platforms which are mentioned, none of the platform allow a student to go to the class. Actually, it land them up into a conferencing hall. Whereas the platform which we see below will basically help the students to get into the classroom. तो उसके बाद क्लासरूम में जो हो सकता था, जैसे टीचर आज की तारीख में भी क्लास लेते हैं फिजिकली, all those possibilities are there in the educational software. I will, as you all are mostly, we all are coming from the teaching background, so we can very well understand कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो क्या करते हैं आप? You basically interact with the students, you basically take the class, you give them notes, you give them homeworks, all that is possible in the below platforms. Whereas ऊपर के प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है. So let me quickly go to the next slide. I just put only 2 to 3 points. There are many points to noted here. Educational platform, a student will log into a classroom. On the contrary, on the other side, non-educational platform, they log into conference. On the left side, again, educational platform, class material will be available for a student when they log into the class. वो कैसे होगा इंशाल्लाह हम देखेंगे थोड़ी देर में demo. On the other side, need to browse features. If they connect on the conference, they need to go and search. If I want to show something on the YouTube, or if I want to show some material, I have to every time, as a teacher, I have to go every time and search in my laptop. मेरे को कंप्यूटर में जाके ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, स्क्रीन मिस हो जाएगा, there could be a lot of problems. And again, on the left side, educational side, teacher can give online assignments as well as she can do online assessments. Post assessment, she can also do gradings. That is possible. Whereas on the non-educational platform, none of these features are available. So, as I said, we can able to see a lot of these features in the demo, inshallah, because I'm trying to go quicker over the slides so that I can jump onto the demo and show the demo comfortably so that all of us can see the available features in these platforms. Now, what is the future of online education? We need to very well, take this in mind that, online teaching is here to stay for some time. As we all know. Rahman sir, I'm really sorry again, I'm troubling you. थोड़ा सा साथ में उर्दू अगर आ जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे गवर्नमेंट टीचर्स डिस्ट्रिक्टों से जुड़ रहे हैं, थोड़ा इशू आ रहा है. प्लीज जरा सा इंग्लिश से मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा.
ठीक है इंशाल्लाह। मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो जंप आउट हो जा रहा हूँ मैं एक्चुअली वापस इंग्लिश जी में। जी जी, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है अभी कुछ वक्त तक रहने वाला है, वी हैव टू लिव विद इट, यानी हमको इसके साथ कुछ टाइम तक ज़िंदगी गुजारना है अभी। जैसे कि अभी आप देखिए कि करंटली कोविड-19 के जो सर्ज हो गया कोविड-19 के केसेस में, एवरी डे वी सी दैट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड करंटली देयर इज़ नो क्लियर पॉलिसी दैट स्कूलिंग एंड आगे कॉलेज स्कूलिंग कैसे आगे जो है ना चलेगी। स्टिल हमारे स्टेट गवर्नमेंट से करंटली हमारे पास कोई भी जो है ना वी डोंट हैव एनी क्लियर स्टेटमेंट। आई थिंक आई हैव वन मोर स्लाइड फॉर दैट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि the future of this online education will be there because अभी जो 2030 की प्रोजेक्शन है, 2030 की प्रोजेक्शन है, KPMG की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिया की प्रोजेक्शन बता रहा हूँ कि करंटली इंडिया का जो एजुकेशन में पीपल आर 8% ऑफ द पीपल आर यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। शायद हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, वी आर नॉट इन 8%, बट द प्रोजेक्शन सेज बाई 2030 more than 60% people will use online education platform. So that means अब हमको ये देखना है कि देर इज़ नो वे कि भाई हम इसको नहीं सीखेंगे या इसको नहीं करेंगे वाली बात। लेट मी गिव वन एग्जांपल। जब कंप्यूटर इंडिया में आया था तो हम देखे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है ना एहतजाज कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर इंडिया में नहीं आना चाहिए। और आज की तारीख में हम सब इसके चश्मदीद गवाह है कि बिना कंप्यूटर के वी कैन नॉट लिव, बिना मोबाइल के वी कैन नॉट लिव, बिना स्मार्ट डिवाइसेस के वी कैन नॉट लिव। सो द सेम वे द करंट प्रोजेक्शन अबाउट 5G, क्योंकि 5G आने वाला है अभी, वी आर इनटू 4G एरा। 5G के आप देखिए अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में मोबाइल बिकना शुरू हो गए, ऑल्दो द टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट कम येट इन इंडिया, बट 5G की टेक्नोलॉजी आने वाली है। चूँकि मैं टेलीकॉम बैकग्राउंड से आ रहा हूँ तो आई हैव दैट नंबर्स एंड फिगर्स इन प्लेस कि कितने फिगर्स में, कितने परसेंटेज में जो है ना नंबर ऑफ डिवाइसेस विल इंक्रीज। करंटली there are about 8 billion devices connected to the internet today. How many? 8 billion. हमारी total population 7 point some billion है. So the percentage of mobile per person is 1.2 ratio. तो होने वाला ये है कि with 5G and down the line in next 5 years the percentage of number of devices which will connect to internet, which will also have an educational system into it, it will increase to 30 billion. This is the current report from Mobile World Congress, which happens in Barcelona every year. So ये figures and facts बताने का reason ये है कि these things are happening and we are getting cornered. हम जो है ना अपने आप को इससे बचाने के बजाय हमको ये देखना है कि भाई how do we get into it, हाउ डू वी पार्टिसिपेट, हम किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे इस नई टेक्नोलॉजी को एटलीस्ट बेसिक लेवल पे सीखने के लिए, सो दैट वी स्टे अहेड इन द बिजनेस, वी स्टे अहेड इन द फील्ड, रेस्पेक्टिव फील्ड वेर एवर वी आर। एजुकेशन इज ऑफकोर्स वन ऑफ द वेरी बिग एरिया। सो अभी हो ये रहा है कि देर आर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर कमिंग, हार्डवेयर कमिंग, डिवाइसेस कमिंग, टेक्नोलॉजीज इज बिकमिंग ईजी एंड ईजी। नाउ डेज स्मार्ट मोबाइल फोन एवरीबडी कैन यूज। अभी इट इज़ नॉट ए नाइटमेयर टू यूज़ ए स्मार्ट मोबाइल। सो उसी तरह, ठीक उसी तरह मैं जिस प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा स्टार्टिंग में शायद हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह आफ्टर बेसिक लर्निंग वी विल बी कंफर्टेबल विद इट। सो नेक्स्ट लेट मी जस्ट शो अ वेरी क्विक स्नैपशॉट ऑफ द ग्लोबल व्हाट इज़ हैपनिंग इन 2010 की मैं रिपोर्ट निकाला हूँ, 2010 की। अगर आप इसमें देखिए कि नंबर ऑफ student enrollments are increasing day by day for online education. Online enrollment is surging up, ज़्यादा हो रहा है, day by day ज़्यादा होते जा रहा है ये। एक और स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखिए आप। दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, मैं भी अपने मेरे इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में MOOC एक प्लेटफॉर्म है जिसको UGC यूज़ करता है आज की तारीख में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इंडिया की एजुकेशनल गवर्निंग बॉडी है, दे यूजेस MOOC। इसमें आप देखिए इंडिया का जो परसेंटेज है स्टूडेंट ओरिजिन्स, इंडिया की 8.8% है, बीच में देखिए मिडिल ऑफ द ग्राफ, राइट। सो दिस परसेंटेज, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि दिस परसेंटेज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 40% नेक्स्ट फ्यू ईयर्स।
सो और इसमें राइट पे आप देखिए, ऑफ कोर्स फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्टूडेंट ऑफ साइंस, यानी किस टाइप के कोर्सेस ये स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन जाके पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस ले रहे हैं बच्चे, एज वेल एज ऑनलाइन एजुकेशन इज हैपनिंग। तो इंडिया में चूंकि अब हम कोविड-19 से हिट होने के बाद वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर गवर्निंग बॉडी की तरफ से अभी भी कोई क्लियर रूल्स नहीं है। द रीजन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, क्या क्या रीजन है इसका। it is pretty much clear कि भाई where we are heading. So again I'm stressing the point, instead of keeping ourselves away from the technology, let us start exploring the technologies how best we can utilize for our purpose. ये बोलने का मकसद है मेरा आप लोगों को यहाँ पर। What are government regulations? स्लाइड पे आप लोग कुछ नजर आ रहा है? स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपकी? नहीं, स्लाइड पे कुछ नजर आ रहा है आपको? What are government regulations के साथ? जी, तो बोलना ये है कि एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी इसी तरह प्लान है। The reason is इसकी फंडामेंटल कहाँ पर फंडामेंटल इशू है मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली हमारे जो परमिशन देने वाले जो बोर्ड्स है, सेकेंडरी के, हायर के, यूजीसी के, कहीं पर भी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कोई भी गवर्निंग लॉ लिखा हुआ नहीं है करंट। तो वो क्या रहा है प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अगर हाँ बोले तो व्हाट इज द ग्राउंड, गवर्नमेंट अगर ना बोले तो व्हाट इज द ग्राउंड। तो दिस इज द चैलेंज बिकॉज ऑफ दिस वी सी कि आज की तारीख में भी तेलंगाना में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कैसे एजुकेशन आगे चलेगा। सो जस्ट लेट मी पुट वन स्लाइड हियर, दिस इज फॉर भोपाल में, मध्य प्रदेश में भोपाल में गवर्नमेंट ने अभी जियो पास किया है और इसमें गवर्नमेंट में ये रूल बताया है कि 6th क्लास के बाद जो है यू कैन स्टार्ट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। Also government has said that you can, sorry I think I got mute. Yeah. जी, तो also government has, ये भोपाल का मैं बता रहा हूँ, और very soon we will see that the same replica will be there in Telangana as well as in the other states. Very soon we will see the announcements. I'm pretty sure the announcement will come the same way what has come in Madhya Pradesh. So it is a matter of days to get this, to get the things regulated and to get the geo. So with this, government has basically permitted the education, online education. They are permitted to take the classes online, and they said, the government said कि आप students को tuition fees charge कर सकते हैं, not the annual fees, not the term fees, but you can charge the tuition fees. ये गवर्नमेंट की इंडिकेशन है इस जियो के साथ। सो एज अ सेड, मैं एक साइड का पार्ट ब्लैंक रखा हूँ इस वजह से क्योंकि अभी तेलंगाना की रेगुलेशन कोई नहीं आई यहाँ पे, जब आएगी तो इंशाल्लाह हम डाल देंगे, गालिबन नेक्स्ट सेशन तक आ जाएगी। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय स्लाइड सेशन, दिस वाज ऑल इंट्रोडक्शन अभी तक मैं जो कवर किया हूँ। इस सेशन में बिफोर आई मूव ऑन, मे बी आई प्रिज्यूम कि इस सेशन में कई सारे मेजॉरिटी टीचर्स होंगे और हो सकता है कि कोई स्कूल के ओनर्स भी होंगे, कोई प्रिंसिपल्स भी होंगे। सो आई जस्ट वांट टू गिव ए हाई लेवल व्यू कि हम अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अचीव, हम क्या करना चाह रहे हैं और करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसमें इसको आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज डे 1 and 2। डे 1 and 2 में वी नीड टू एस्टैब्लिश एन ऑनलाइन प्रेजेंस। किसी भी स्कूल को, किसी भी कॉलेज को अगर अपने इंस्टीट्यूशन को ऑनलाइन करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करना है एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ, नॉट विद जूम एंड नॉट विद व्हाट्सएप एंड वेबएक्स, नॉट विद स्काइप, विद ए प्रॉपर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। भाई आप लोग के जिसके नंबर्स मोबाइल म्यूट नहीं है, काइंडली म्यूट देम प्लीज, because I am thinking somebody is asking question. Please, so that our session will go smoothly. तो मैं ये बता रहा था कि हमारे 3 स्टेजेस है अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने एकेडमिक्स कॉलेज को, स्कूल को ऑनलाइन पर लाने के लिए विद ए प्रॉपर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन दोज नॉन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। सो डे 1 में वी हैव टू एस्टैब्लिश अ प्रेजेंस
जिसमें हमको अपना क्लाउड पे अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। जैसे एक स्कूल की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है क्लासेस के साथ, लाइब्रेरी के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, कोर्सेज के साथ, सिमिलरली ऑनलाइन क्लाउड प्रेजेंस वी हैव टू एस्टैब्लिश। So there are a lot of settings, configurations to be done with Google and Microsoft. बड़ा सा look कर लीजिए आप, please. So the second part is, पहला हमको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्लासेस बनाना पड़ेंगे, उसके लिए टीचर्स के अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए स्टूडेंट्स के अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए कैलेंडर शेड्यूलिंग बनाना पड़ेगा, लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसके अंदर कोर्स मटेरियल को प्लान करना पड़ेगा कि भाई कौन सी क्लास में कौन से टीचर पढ़ाएंगे, उनका टाइमिंग क्या होगी और उनके लिए क्लास मटेरियल क्या है, वो सब कुछ करना पड़ेगा डे 1 and 2 में, फर्स्ट फेज। सेकेंड पार्ट इज, विदाउट प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट ट्रेनिंग वी कैन नॉट रन दिस प्लेटफॉर्म स्मूथली। यानी स्टूडेंट्स की और टीचर्स की ट्रेनिंग लाजिम है अगर इस प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाना है। देखिए, मैं वापस अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ मैं कि ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम ऑनलाइन, इट इज़ नॉट 1 day 2 day ट्रेनिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे सम टाइम विद कोविड-19, और उसकी वजह से स्कूल खुलने के बाद भी वी आर नॉट श्योर कि हाउ मेनी स्टूडेंट विल कम, इवन इफ द गवर्नमेंट गिव परमिशन। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है, वैसे गवर्नमेंट के चांसेस तो परमिशन है देने के ऑनलाइन के। अगर गवर्नमेंट खुदा ना परमिशन ये दे देती है कि बच्चों को आप बुला के भी पढ़ा सकते हैं, तो स्टिल देयर इज लॉट ऑफ chaos that whether parents are going to send, whether school can maintain the distance and the norms of COVID-19, बहुत सारे issues है, challenges है। We have to live with COVID-19 for some time। उसके लिए हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म जो टीचर्स यूज़ करेंगे और स्कूल का मैनेजमेंट यूज़ करेगा फॉर प्रॉपर क्लासेस डिलीवरी। यानी देखिए, क्लासेस आप जब डिलीवर कर रहे हैं, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं हम, तो आपको ये याद नहीं रहेगा 1 महीने के बाद कि आप बच्चे को आज की तारीख में क्या पढ़ाए थे। नोबडी विल रिमेंबर दैट। लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, दिस प्लेटफॉर्म विल रिमेंबर एवरीथिंग। ये प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर रहेगी कि आप बच्चों से किस तरह से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चों को क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, एंड हाउ बेसिकली यू आर इंटरेक्टिंग एंड टीचिंग, व्हाट यू आर टीचिंग, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। इंशाल्लाह वी विल सी द डेमो। The second phase, as I said, it is very important to give proper training to teachers as well as students to use the platform. The last phase, you can go online with taking the classes. So let's move on कि कौन से प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और वी कैन डिलीवर द एजुकेशन ऑनलाइन। तो इसके लिए देर आर 2 major platforms. One is Microsoft, the second one is Google platform. आप मेरे प्रेजेंटेशन में देखे होंगे कि मैं नीचे और भी कुछ प्लेटफॉर्म में लिखा था नाम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के, लेकिन वो सॉफ्टवेयर दे आर ऑल हाईली पेड सॉफ्टवेयर, वो बहुत महंगे सॉफ्टवेयर है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक दोस सॉफ्टवेयर। अभी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आर गिविंग द लाइसेंसेस फ्री। अदरवाइज ये जो लाइसेंसेस है, पहले इसकी प्राइस थी 165 पर यूज़र पर मंथ, 165 रुपीज़ था इसका प्राइस पर यूज़र पर मंथ। और अभी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एक वर्जन बनाए इसका, वर्जन 1, A1 बोलते हैं उसको लोग। दिस वर्जन दे आर गिविंग फॉर फ्री एंड दिस वर्जन इज एनफ फॉर अस टू टेक द क्लासेस। ठीक है, तो हम इसमें इंशाल्लाह 2 प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म एंड गूगल प्लेटफॉर्म। दोनों के अपने एडवांटेजेस है, प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है और ईजी टू यूज़ है, जहाँ पे बच्चे और टीचर बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, या फिर आईटी में एडवांस इन द सेंस आईटी में एडवांस नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड गूगल। अगर आप बोलते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स और हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस लेवल पे है, तो आई वुड एडवाइज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। सो दिस इज हाउ आई कैन सेग्रीगेट राइट नाउ। अच्छा, इसमें देखिए कि आपको आपके स्टूडेंट्स को क्या होगा फर्स्ट डे में, जिस दिन में आपके स्कूल का प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा। ऑन द लेफ्ट साइड आप देखिए कि आप इस क्लासेस को वेब पे एक्सेस कर सकते हैं, यानी अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने टैब से, अपने आईपैड से यूज़ कर सकते हैं आप। दूसरा, आप एंड्रॉयड मोबाइल यानी जो भी प्ले स्टोर में जाके आप अपना क्लासरूम डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे स्कूल की तरफ से यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, यू कैन यूज़ दैट यूज़र नेम पासवर्ड टू लॉग इन टू द क्लास।
same way you can also use Apple iOS सॉफ्टवेयर, iTunes से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो डे 1 में इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन विद ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल मीन्स। सो ऑफ कोर्स द प्लेटफॉर्म इज सेफ, प्लेटफॉर्म इज सिक्योर, प्लेटफॉर्म इज रोबस्ट, प्लेटफॉर्म इज स्केलेबल, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जूम को इलीगल करार दिया इंडिया में ये यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें डेटा हैकिंग हो रही थी। कल आप लोग हम सब अटेंड कर रहे थे सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का सेशन, जिसमें आप देखे थे कि सिक्योरिटी रिलेटेड साइबर स्पेस में साइबर सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ हैं। सो उसमें जूम में बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, चाइनीज़ ब्रांड होने की वजह से ऑफ कोर्स फंडामेंटली वो उसी तरह से प्रीसीव किया जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि डोंट यूज जूम प्लेटफॉर्म, बट स्टिल करंटली वी आर डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म यूजिंग जूम एज ए प्लेटफॉर्म टू डिलीवर आवर सेशन। So inshallah, maybe next session probably will move to Google, hopefully. अब्दुल रहमान साहब, सॉरी टू से इन बिटवीन, आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए और 5 मिनट है, क्योंकि 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखे हैं। राइट सर, थोड़ा सा शायद तेजी से जाना पड़ेगा। आई एम मूविंग नाउ। मैं सिर्फ एक्चुअली जो है आपको 2 व्यू बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2 व्यू ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ लॉग इन करके। आई विल जस्ट शो यू वेरी क्विकली। देयर आर 2 व्यूज इन द सेंस, जब इस सॉफ्टवेयर को टीचर यूज़ करेंगे, एज ए टीचर अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और जब आप इसमें अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो ये जो स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको, 5th क्लास सेक्शन ए, 5th क्लास सेक्शन बी। आप जब लॉगिन करेंगे, यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये देखिए आप, मैं यहाँ राइट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आप लॉगिन करें एज ए क्लास टीचर @genius कॉलेज जो है ना, यहाँ पे मैं लॉगिन किया हूँ इससे। जब उससे आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे टीचर के, तो ये आपका व्यू है, यानी ये टीचर 2 क्लासेस को मैप है। शी इज़ मैप टू क्लास 5th A, क्लास 5th B। और जब आप क्लास में जा रहे हैं अंदर, तो टीचर विल हैव दिस व्यू, टीचर को ये सब कुछ नज़र आएगा। मैं क्विकली बता देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। स्ट्रीम यानी जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर देखिए आप, टॉप स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स, 4 चीज़ें हैं। स्ट्रीम में जैसे क्लास में आप बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मैसेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, वो सब कुछ स्ट्रीम में आएगा। जी हमारे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है सर, आप जो कह रहे हैं ऑप्शंस। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेक अगेन। अभी देखिए। यस सर, नाउ वी कैन। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि राइट पे आप देखिए, मैं यहाँ लॉगिन कर चुका हूँ एज ए क्लास टीचर। यहाँ पे देखिए आप राइट पे, मैं इस आईडी से लॉगिन किया, टीचर वाली आईडी से लॉगिन करने के बाद आई एम हैविंग दिस व्यू, 5th क्लास ए एंड 5th क्लास बी, राइट। अब मैं 5th क्लास ए में जा रहा हूँ। जाने के बाद मेरे को 4 ऑप्शन है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड। तो स्ट्रीम में क्विकली मैं बता दूँ आपको, स्ट्रीम में टीचर जिस तरह से स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं क्लास में, शी कैन कम डाउन एंड शी कैन शेयर एनीथिंग ओवर हियर। टुमारोज होमवर्क, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं टाइप कर रहा हूँ टुमारोज होमवर्क, मैं आके यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ इसको इमीडिएटली। यानी टीचर पोस्ट कर सकते हैं, किसको पोस्ट कर सकते हैं, शी कैन पोस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, और शी कैन सेलेक्ट ये मैसेज किसको जाना है, तो सिंपली शी कैन कम डाउन एंड शी कैन पोस्ट इट। मैं एक एग्जांपल देते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे टीचर पोस्ट करेंगे, ये मैसेज सारे स्टूडेंट्स को पहुँच गया, देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए 4:55 के 51 के। मैं बताता हूँ बाद में स्टूडेंट व्यू से कि मैसेज कैसे नजर आएगा। अब ये टीचर जैसे क्लास में ठहर के बच्चों को मैसेज देते हैं, शी कैन डिलीवर द मैसेज फ्रॉम हियर, एंड इफ यू वांट टू शेयर शी कैन अटैच एनी फाइल। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द क्लास वर्क, टीचर कैन पुट अप ऑल हर सिलेबसेस हियर। जो सिलेबस टीचर पढ़ाते हैं वो, अगर ये टीचर को करंटली 3 सिलेबस मैप थे, मैथमेटिक्स, हिंदी, एनवायरमेंटल साइंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट शी कैन क्रिएट असाइनमेंट्स एंड क्विजेस एनी टाइम। जैसे मैं मैथ्स में आ रहा हूँ, मैथ्स में टीचर का जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसके सारे कंटेंट पहले से मैप करके रख सकते हैं यहाँ पे। तो टीचर जब भी लॉगिन करेंगे, ये सारे कंटेंट्स पहले से क्लास में मौजूद रहेंगे। शी कैन टेक द सब्जेक्ट एंड शी कैन टीच डायरेक्टली। उसी तरह शी कैन टेक द असाइनमेंट्स, शी कैन टेक द क्विज ऑल्सो। वो बाद में, अभी थोड़ा सा मैं अगर करूँगा तो लंबा हो जाएगा वो। Here she can just click on create, she can create and do all these things. She can create a material for the class, she can create an assignment, he can create an quiz, questions, सब कुछ possible है। Topics she can create, he can create topics. Then यहाँ पे देखिए आप, ये राइट पे देखिए आपको गूगल कैलेंडर नज़र आ रहा है। ये कैलेंडर में आप अपना लेसन प्लान कर सकते हैं यहाँ पे।
टीचर कैन क्रिएट द लेसन प्लान। जब बच्चा लॉगिन करेगा तो बच्चे को सारा लेसन प्लान नजर आएगा कि कौन सी क्लास कब है, कौन सा सेशन कब है। दिस इज क्लास कैलेंडर। देन अगर टीचर कोई बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहे कोई भी फाइल्स को, तो शी कैन पुट इट इनटू द क्लास ड्राइव, ये वाली। ऑलराइट, सिमिलरली मीट जो ऑप्शन है यहीं से क्लिक करेंगे तो आपकी क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगी, सारे बच्चों को मैसेज आ जाएगा क्लास स्टार्ट होने का। देन कमिंग बैक इन पीपल, यू विल सी द टीचर्स हु आर मैप्ड टू दिस क्लास एंड यू आल्सो सी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास। जितने स्टूडेंट्स हैं टीचर देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को। ग्रेड में टीचर जब करेक्शन करती है तो शी कैन पुट द ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर। सो अब टाइम नहीं होने की वजह से मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, खाली मैं आपको लिंक बता के आगे निकल जा रहा हूँ। सिमिलरली लेट मी शो वेरी क्विकली अबाउट स्टूडेंट व्यू। इफ आई गो टू स्टूडेंट, देखिए मैं स्टूडेंट से लॉग इन किया हूँ, student1@school.com। तो यहाँ पे मैं जब स्टूडेंट से लॉग इन किया हूँ तो ये स्टूडेंट जस्ट बिलोंग्स टू ओनली 5th A, यानी हर बच्चा एक ही क्लास को मैप करेगा ना। तो ये बच्चे जब लॉग इन करेगा उसको अपनी क्लास नजर आएगी। व्हेन ही क्लिक हिज क्लास ही विल लैंड अप इन द क्लास। अब देखिए वहाँ पे, यहाँ टीचर आप थोड़ी देर पहले हम क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे टुमारोज होमवर्क बोल के, ये देखिए बच्चे के बाद नजर आ रहा है यहाँ पे नीचे मिडिल में, ये वाला मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ टीचर से क्रिएट करे थे, अब स्टूडेंट से हम लॉग इन करके बता रहा हूँ आपको कि स्टूडेंट कैन सी व्हाट टीचर इज कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट ऑन अ डेली बेसिस। उसी तरह स्टूडेंट को देखिए अब यहाँ पे एक लिंक नजर आ रहा, 5th क्लास A के नीचे एक लिंक नजर आ रहा। जब मैं ये लिंक क्लिक करूँगा तो बच्चा डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करेगा जो टीचर क्लास स्टार्ट की है ऑलरेडी। टीचर ने जो क्लास स्टार्ट की है ही कैन डायरेक्टली ज्वाइन फ्रॉम हियर। ज्वाइन बोलेंगे तो क्लास ज्वाइन हो जाएंगे वो। तो कोई और लिंक, कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लॉगिन आईडी में उनको अपना लिंक मिल जाएगा कहाँ से ज्वाइन करना। क्लास वर्क में जब कैंडिडेट स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट को सारी चीज़ें नज़र आएगी जो टीचर क्रिएट किए, मैथमेटिक्स का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, एनवायरमेंटल का सिलेबस जो हम देखे थे वहाँ पे। सिमिलरली असाइनमेंट्स असाइंड है स्टूडेंट को, जो असाइनमेंट असाइंड है ही कैन गो एंड चेक द असाइनमेंट्स एंड ही कैन डू द असाइनमेंट एंड ही कैन रिटर्न बैक टू द टीचर। एक मैं एग्जाम्पल देखा बताया तो आपको यहाँ पर टाइम रहा तो 1 मिनट में। ओके, वीडियो लेक्चर्स आप चाहे तो वीडियो लेक्चर्स आप जो क्लास ले रहे हैं उस लेक्चर को रिकॉर्ड करके आप इस तरह से लेक्चर को प्ले कर सकते हैं। ये वीडियो राइट। तो बस मैं ये क्विकली बताना चाह रहा था कि जो टीचर क्लास लेने के बाद अगर कोई बच्चे किसी वजह से आज की क्लास अटेंड नहीं कर सके, उस सेशन को रिकॉर्ड करके यहाँ पे मैप कर दे सकते हैं आप अपनी क्लास में। टीचर कैन डू दैट। और स्टूडेंट जब भी लॉग इन करेंगे उनको वो सेशन नज़र आएगा किसी वजह से अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो बोलने का मकसद ऑल इन ऑल ये है कि इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली प्लान्ड एंड केप्ट सो दैट ना ही टीचर को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है इसमें। और इसके बाद अगेन जैसे क्लास ड्राइव है, यहाँ पे अगर टीचर वहाँ पे कोई भी फाइल शेयर करना चाहता है तो शी विल पुट इन क्लास ड्राइव, बच्चे को यहाँ से एक्सेस हो जाएगा क्लास ड्राइव से। तो आई नो आपके जहनों में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जैसे मैं भी बता रहा हूँ। तो ऑफकोर्स वंस वी ओपन अप फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव ऑल आंसर्स। और यहाँ पर पीपल में जब बच्चा जाएगा अपनी लॉगिन आईडी से तो ही विल सी हिज क्लासमेट्स कि इनकी क्लास में कौन कौन बच्चे हैं, वो 10, 20, 40, 50 कुछ भी हो सकते हैं, और कौन कौन टीचर्स है, ही कैन एबल टू सी। तो आरिफ साहब, आई थिंक आई हैव डन प्रीटी मच विथ वेरी क्विक स्नैपशॉट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। आई थिंक वी कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इस बीच में देर इज ए चांस कि दोबारा एक बार टाइम आउट होने का चांस है, तो रहमत आप लोगों को गुजारिश रहेगी कि सवाल जवाब के सेशन के लिए दोबारा लॉग इन हो जाएं अगर से कि हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो एक पहला सवाल ये है अब्दुल रहमान साहब कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हर बच्चे का ईमेल आईडी बनाना ज़रूरी है? जी सर, ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है। इसमें स्कूल की परमिशन के बिना स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से स्कूल वाले मैनेजमेंट जो है स्कूल का, दे विल प्रोवाइड अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और वो सारा सेटअप आप हमको एक बार करना पड़ेगा वन टाइम। सारे स्कूल के आईडी बनेंगे, सारे टीचर्स के आईडी बनेंगे, एंड ऑल दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट। सर और एक बात सर, माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में नहीं बताया सर। सर टाइम नहीं था ना, मैं गूगल का ही नहीं बता पाया पूरा।
नहीं नहीं, ये अगर 10 मिनट्स अगर है तो ले सकते हैं सर माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम मेरे को नहीं, आरिफ साहब से पूछना पड़ेगा परमिशन तो, लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ मैं, मेरे डेस्कटॉप पे आपको नजर आ रहा होगा टीम में पड़ा हुआ है, देखिए। लेकिन चूंकि अभी जो है टाइम नहीं होने की वजह से मैं टीम को नहीं बता पा रहा हूँ। अगर हो सकता तो हम इंशाल्लाह एक सेशन, अगर इजाज़त मिली प्रेसिडेंट साहब की तरफ से और आरिफ साहब अगर वो लोग ऑर्गेनाइज करें तो इंशाल्लाह हम एक उसका सेशन अलग से कर लेंगे, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जी असगर साहब, मेरे को भी ये सुझाव बहुत बेहतर लग रहा है कि थोड़ा सा एक सेशन हम अब्दुल रहमान साहब का दोबारा करें। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज भी थे स्टार्टिंग में, तो उस सेशन में उसको थोड़ा डिटेल ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो है हम पूरा डीप में नहीं जा सके, इवन गूगल प्लेटफॉर्म को भी। तो गूगल प्लेटफॉर्म एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मैं खुद भी उसको यूज़ किया हूँ। तो वी विल ट्राई टू गो वन मोर टाइम डीप इनटू इट। अभी कुछ थोड़ा सा वक्त सवाल जवाब के लिए रख लेते हैं, और एक कोशिश ये भी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे, आज कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह जुड़े हैं, नेक्स्ट सेशन में अगर वो उनके आईसीटी डिपार्टमेंट को या उनके टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट्स को भी साथ में जोड़ लेंगे तो काफ़ी मदद हो सकेगी। इस बीच में अब्दुल रहमान साहब, एक सवाल ये भी आया है कि अगर कोई स्कूल, गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट टीचर्स अपना खुद का गूगल का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा? अगर कोई भी स्कूल अपना प्लेटफॉर्म रेडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए देयर आर 2 प्री कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज स्कूल की वेबसाइट होना कंपलसरी है, क्योंकि जैसे हमारे को स्कूल फिजिकल रन करने के लिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की नज़र में आपकी और हमारी प्रेजेंस तभी है जब हमारी वेबसाइट है। तो द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू हैव अ वेबसाइट। सेकंड वन इज वी नीड टू हैव अ फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी तक, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी तक, कॉलेज है तो कॉलेज का परमिशन। जब ये होंगे तो हमको जो है वी कैन अप्लाई फॉर द फ्री लाइसेंसेज। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये लाइसेंसेस और ये सॉफ्टवेयर अगर आप थर्ड पार्टी के लेंगे, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बिलीव मी, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और ये फिलवक्त माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की तरफ से फ्री है। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने कॉलेज में, अपने स्कूल्स में इसको बताइए और आप लोग गेट देम अप्लाई फॉर द लाइसेंसेज विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो सॉफ्टवेयर का डेमोंस्ट्रेशन दिए उसका नाम क्या है? अभी जो मैं डेमो दिया हूँ साहब आपको, इसका नाम है गूगल क्लासरूम, गूगल फॉर एजुकेशन। और इसी अगर कोई गवर्नमेंट टीचर स्टार्ट करना, जी सर, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर अपने सेल्फ के लिए स्टार्ट करना चाह रहा है तो क्या वो अकेला स्टार्ट कर सकता है गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं सर, अकेले नहीं स्टार्ट कर सकते। स्कूल की परमिशन लेना पड़ेगा, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रजिस्टर करा के हम उसको परमिशन लेना पड़ेगा। ऑफिशियली लाइसेंस अलाउड होंगे हमारे गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से। जब ऑफिशियल लाइसेंस अलाउ होंगे तब हम पूरे बच्चों के आईडी क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट क्रिएट द स्टूडेंट आईडीज। अब आप देखिए एक फ़र्क मैं जैसे बता रहा हूँ कि जूम है, अगर मैं इसकी ओके, नेक्स्ट टाइम से टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम आरिफ साहब, वी कैन यूज गूगल मीट, विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम इंशाल्लाह। वी हैव टू जस्ट ट्रेन आवर मेंबर्स ऑन गूगल मीट। वो एक्चुअली पहले क्योंकि जूम ज़्यादा आ गया था मार्केट में, तो हमने जूम पे ट्रेनिंग दे दी थी। तो इट विल टेक 1 सेशन टू ट्रेन गूगल मीट, इंशाल्लाह वी विल डू इट ऑन। और हो सके हम कॉर्पोरेट आईडी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं सर, कॉर्पोरेट लेवल का जूम ले लेते हैं तो इतने इश्यूज नहीं होंगे। जूम अच्छा नहीं रहता भाई, जूम बिल्कुल मत लीजिए। नहीं सर, जूम को सिक्योरिटी इशू भी है उसमें, सिक्योरिटी इशू भी। आई वुड से अवॉइड द क्रिटिकल। जैसे अभी कल ही हम लोग साइबर सिक्योरिटी का सेशन अटेंड किए हैं, तो वी कैन नॉट पास आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन। करेक्ट जी सर, आप सवाल जवाब में से लोग जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। हम अब्दुल रहमान साहब ने एक सवाल है अब्दुल रहमान साहब से, वो ये कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वो लोग अपना इंस्टीट्यूट में जो है लेक्चर्स देना चाह रहे हैं, तो क्या वो ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ट्यूटोरियल है। अच्छा, ट्यूटोरियल में आपके कितने बच्चे हैं आपके पास ट्यूटोरियल में? 100 बच्चे हैं। अच्छा, आप इंशाल्लाह आरिफ साहब से मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, तो उसकी तफसीलन डिटेल इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। तो इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, कर सकते हैं अपन, वी कैन डू इट थ्रू अदर मेथड। एक सवाल और है अब्दुल रहमान साहब जी, एक सवाल ये आ रहा है, जनाब इरफान साहब एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, उनका पूछना है कि क्या वेबसाइट भी हमको फ्री होस्टिंग से मिल सकती है क्या कोई? जैसे गूगल की अपने वेबसाइट्स हैं, गूगल साइट्स बोलकर, कैन वी डू ऑन दैट? हाँ देखिए, एक्चुअली देखिए, वेबसाइट एक है हमारे को वेबसाइट बनाना, जैसे हम स्कूल का नाम रखते हैं वैसा हमको एक नाम रखना पड़ेगा वेबसाइट का पहले। उसके बाद स्कूल का नाम रखने के बाद स्कूल के लिए जगह चाहिए,
जहाँ पे हम स्कूल को रन करते हैं, उसी तरह यहाँ पे वेबसाइट का नाम रखने के बाद वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा हमारे कहीं पे। तो होस्ट करना पड़ेगा, बिना होस्ट की वेबसाइट रन नहीं हो सकती। जैसे स्कूल बिना जगह के नहीं रन हो सकता, वैसे वेबसाइट भी रन नहीं हो सकती। तो वेबसाइट का जो बेसिक छोटे से छोटा जो पैकेज है मिनिमम वाला, वो 4-5 हज़ार में बन जाती है वेबसाइट, अगर आप बहुत एडवांस वेबसाइट नहीं बना देते। तो वो वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस प्रोसीजर को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो सर ये गूगल साइट्स वाली जो वेबसाइट होती है वो हमको बिल्कुल परमिशन नहीं देंगी गूगल प्लेटफॉर्म को? नहीं, आपको वेबसाइट होस्ट करने का परमिशन नहीं देंगे वो लोग। कंटेंट होस्ट का परमिशन है, वेबसाइट होस्टिंग का परमिशन नहीं है। दे विल चार्ज फॉर इट। ओके, और कोई सवाल ऑडियंस की जानिब से फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? आप मेरे को थोड़ा सा होस्ट बनाइए साहब, मैं अपना कंटेंट शेयर करता हूँ, मेरी स्लाइड शेयर करता हूँ। ओके सर, मैं बना रहा हूँ। आई एम गिविंग यू शेयरिंग परमिशन राइट नाउ। प्लीज जी। आपका फोन नंबर भी बोल दीजिए जरा जब तक। जी साहब बताइए, क्या बोल रहे थे आप? मेरा नाम रहमत है। जी सर। मैं आपसे मतलब ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि पहले कि एजुकेशनल क्लासरूम्स के लिए एक अलग जगह होती है और कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए भी एक अलग जगह होती है। तो टेक्निकल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, यानी कि एक क्लासरूम होस्ट करने में और एक कॉर्पोरेट मीटिंग्स में? क्योंकि दोनों जगह भी आपको प्रेजेंटेशन शेयर करना है और दोनों जगह भी आपको कंटेंट डिलीवर करना है। तो व्हाट इज द बेसिक टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, लाइक होस्टिंग टेक्निकल थिंग्स एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म? ये फ़र्क है। एजुकेशनल नॉन एजुकेशन में ये फ़र्क है कि आप जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम जैसे जनरली अब हमारी वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस होती है मेरी बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे लोगों के साथ, तो मेरी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो टेम्प्रेरी उसी वक्त के लिए मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ और स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। वेयर एज आप अगर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो स्कूल में आपके प्रॉपर क्लास होती है जिसमें आप हमेशा जाके जिस क्लास में पढ़ाते हैं, उसी तरह इस सॉफ्टवेयर में आपकी एक क्लास बनेगी। उस क्लास में आपकी ऑलरेडी लाइब्रेरी क्रिएट होगी जिसके अंदर आपके सारे कंटेंट रहेंगे, क्लासरूम के कंटेंट्स, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो, पावर पॉइंट हो, PDF फाइल हो। आप कंटेंट की फिक्र मत करिए, NHRC की साइट पे सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। मैं गालिबन शेयर करता हूँ साइट पे, आपको बता रहा हूँ साइट देखिए। यहाँ पे देखिए आप, लेट मी शो यू द साइट। ये देखिए आप, यहाँ पर आइए, आपको कोई भी क्लास सेलेक्ट करें, जिस क्लास के कंटेंट चाहिए आपको, जिस सब्जेक्ट के कंटेंट चाहिए आपको, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, सिलेक्ट करिए एंड यू कैन एबल टू डाउनलोड द बुक। तो डोंट वरी अबाउट कंटेंट्स एंड ऑल। और अगर थोड़े से टीचर्स को हम स्मार्टली प्रिपेयर कर लें तो टीचर्स कैन प्रिपेयर देयर पावर पॉइंट। मैं जैसे बोला कि देखिए एक चीज़ हमको जहन में ये बनाना है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए 1 day 2 day गेम, 1 day 2 day ट्रेनिंग, इट इज़ गोइंग टू गो फॉर लॉन्ग। अगर आप ये बात क्लियर हो गई मेरे प्रेजेंटेशन से आपको कि अब ये कोविड के साथ हमको कुछ टाइम तक गुजारना है ज़िंदगी, तो ये आपको करना पड़ेगा कि हम बच्चों को आज क्या पढ़ा रहे, कल क्या पढ़ा रहे, 1 महीने के बाद क्या पढ़ाएंगे। अगर आपका प्रॉपर लेसन प्लान हो आपके पास तो देयर वोंट बी एनी मेस इन गिविंग द ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। वरना होगा ये कि टीचर खुद फॉलो नहीं कर पाएगी अपने आप को ऑनलाइन पढ़ाने में कि वो 1 महीना पहले आज की तारीख में क्या पढ़ाए थे, 24th ऑफ लास्ट मंथ वो क्या पढ़ाए, शी विल नॉट रिमेंबर, क्योंकि स्टूडेंट सामने नहीं है बुक हाथ में लेके देखने के लिए। तो द ओनली वे इज, मैं जिस क्लास प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, मैं इस क्लास में स्टूडेंट्स कैन, टीचर कैन शेयर देयर, इट इज़ कॉल्ड कोलैबोरेटिव व्यू। टीचर स्टूडेंट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम में आके देख सकते हैं, पूरे महीने सालों की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे कि वो एक दूसरे के साथ क्या शेयर कर रहे हैं, कब क्या बात कर रहे हैं। इवन पेरेंट्स कैन सी कि बच्चों को क्या होमवर्क दिया गया, बच्चों से क्या कम्युनिकेशन किया गया, बच्चों के अभी क्लासरूम का क्या स्टेटस है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं लोग। So this is the fundamental difference between education software and non-educational software. I hope that answer is clear, sir. Sorry to interrupt you, sir, but as far as a startup school and as a startup institution, this will give you an opportunity of storing some amount of data, like for example, 1 TB, 2 TB. For a long run, like what is the opportunity and what are the feature courses to acquire the space on this online platform, because everything is being stored online. So what is the what is this platform? Understood. I understood your question. I understood. For now, this platform is giving 30 GB to a single account. अगर आपके स्कूल को 5000 लाइसेंस एलोकेट हो रहे हैं तो आपको 5000 टाइम 30 GB डेटा मिल रहा है करंटली, जिसमें जितने टीचर्स है हर टीचर को एलोकेट 30 GB डेटा एलोकेट हो रहा है। सो आई बिलीव एटलीस्ट 1 साल तक तो हम उतना यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप चाहे कितना भी यूज़ कर ले उसमें से, विल नॉट एबल टू क्रॉस दैट। उस इन द मेन टाइम जब आपको लगता है कि आपका स्कूल
completely digitalized हो गया और आपको लग रहा है कि भाई you need an additional soft space and additional features, you can go for इसमें A2 लाइसेंस आता है जो पैसे पे करना पड़ता है, and you can get additional features, paid features. जज़ाकल्लाह खैर सर, अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो वक्त बहुत आगे निकल चुका है. वी आर ट्राइंग टू क्लोज दिस सेशन. इस बीच में अब्दुल रहमान साहब, क्योंकि वी मिस योर अब्दुल रहमान साहब का नंबर शेयर करिए. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से नंबर ले लीजिए मेरा. आई एम जस्ट राइटिंग माय नंबर की. एक और गुजारिश भी है कि जीसी साहब को भी अब्दुल रहमान साहब से टच में आना है तो प्लीज आईटा के स्टेट सेक्रेटरी या फिर वाइस प्रेसिडेंट जनाब असगर साहब से या फिर मीर मुमताज़ अली साहब से टच में आ जाएं. इधर मीर मुमताज़ अली साहब और असगर साहब से टच में आ जाएं, स्टेट के सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, उनके थ्रू अब्दुल रहमान साहब से टच में आ जाएं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप लोग जो है ना चैनलाइज होकर आए और कभी भी मुलाकात भी हो सकती है जब आप लोग से चाहिए. जाकिर जामिया की बिल्डिंग में है ऑफिस हमारा हैबिट्स पे, और कभी भी आप जो है ना मुलाकात कर सकते हैं. आरिफ साहब को इतला दे दीजिए, मोस्ट वेलकम. आप लोग से मुलाकात कभी भी. अब्दुल रहमान साहब, एक्चुअली आपका इंट्रोडक्शन टेक्निकल एरर्स के डोंट माइंड, थोड़ा सा दोबारा एक बार हम सबको आपके बारे में थोड़ा बता दें. जी सर. क्विकली, ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्लाइड है. तो पिछले 1999 से साहब मैं आई एम इनटू इंटरनेशनल एंगेजमेंट विद मैं सीमेंस जर्मनी में रहा बहुत अरसा, और फिर नोकिया में फिनलैंड में जॉब करता था मैं, और बेस्ड आउट ऑफ यूएई. तकरीबन मेरे 65 कंट्रीज का मेरा जो है ना कवरेज था. फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव आई एम PhD इनटू मैनेजमेंट, डुअल MBA एंड लॉट ऑफ IT कोर्सेज एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज. मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करा वरना खालीबन पेज भर जाता है. तो आई हैव जस्ट नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट टेक्निकल. तो ऑलमोस्ट सभी टेक्नोलॉजीज में मेरे सर्टिफिकेशंस है रिलेटेड टू IT एंड साइबर सिक्योरिटी, ऑलमोस्ट सभी वेंडर्स पे. और पिछले तकरीबन मैं अराउंड 65 कंट्रीज में समझता हूँ, शायद पासपोर्ट 5 फुल है पूरे ट्रैवलिंग करते करते. द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट क्लाइंट ऑफ CXO लेवल एट ऑल इंटरप्राइजेस. यू नो टेलीकम्युनिकेशन से लेके IT से लेके एजुकेशन इंडस्ट्री से लेकर शिपिंग इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट मेनी इंडस्ट्रीज. क्योंकि मैं अपने जॉब के साथ साथ आई वाज आल्सो रनिंग माय बिजनेस इन दुबई फॉर सिंस 2002. तो अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दैट आई गेट टू मीट लॉट ऑफ कंपनीज एंड एग्जीक्यूटिव्स, ट्रैवलिंग अराउंड मीटिंग विद पीपल. अल्हम्दुलिल्लाह. सो दैट इज माय क्विक इंट्रोडक्शन. जी सर, बहुत बहुत बेहतरीन रहा सर, जज़ाकल्लाह खैर. और ख़ास बात ये रही कि सारे सेशन के दौरान एक बार भी पलक झपकने का हमें मौका नहीं मिला, उतना इंटरेस्टिंग आपका सेशन चल रहा था. एंड हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज आईटा को एक आप जैसा ट्रेनर मिला है अब्दुल रहमान की शक्ल में. इंशाल्लाह ज़रूर सर आपका एक सेशन बहुत जल्द हम लगाएंगे और थोड़ा सा इस चीज़ को डीप में लेकर जाएंगे. और हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स की जानिब से तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. लेकिन फ़िलहाल मैं स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट असगर हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो 2 मिनट के लिए शुक्रिया अदा करके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दे दें. जनाब असगर साहब. अस्सलाम वालेकुम. चलिए, हम तेलंगाना की तरफ से मैं अब्दुल रहमान साहब का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ, और सारे पार्टिसिपेंट जो अपने कीमती वक्त को इस सेशन के लिए लगाए हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. इंशाल्लाह मैं अब्दुल रहमान साहब से और एक भी गुजारिश है कि इंशाल्लाह हम करीब आपको और एक टाइम के लिए आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह. तो इस बारे में हम फिर उसी सेशन बुलाएंगे सर. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं इंशाल्लाह, और इन डिटेल में हम उसको देखेंगे सर. बिल्कुल इंशाल्लाह. आई नो कि ये टाइम बस नहीं हुआ, मेरे को पता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जंप कर रहा हूँ चीज़ों के ऊपर से, बिकॉज आई वॉज कंसर्न अबाउट द टाइम फ्रेम. आई हैव टू कवर ऑल द थिंग्स. सो आई एम सॉरी दैट टाइम ज़्यादा नहीं था मेरे पास. जी जज़ाकल्लाह सर. फिर भी मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूसरे स्टेट से भी जुड़े हैं. हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. कई डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़े हैं, इवन AP से भी लोग जुड़े हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं. मोहसिना मुबीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं. सकीना मैम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी जुड़े हैं. स्टेट हैदराबाद प्रेसिडेंट जनाब सोहेल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं. और यहाँ के मीडिया सेक्रेटरी शौकत साहब, इरफान साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो लोग भी जुड़े हैं. वक्त की कमी है, मैं नाम से सभी का नाम नहीं ले सकता, बट वी आर रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. इस सेशन से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस हैं
तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए, इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस हमारे ट्रेनर तक पहुंचाए जाएंगे और उसका जवाब फिर आप तक पहुंचाया जाएगा। तो सेशंस अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आज की ट्रेनिंग यहाँ पर ख़त्म होती है। वी आर गोइंग टू एंड द सेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।